in it. The Prime Minister's vehicle stopping in front of where these cadets and volunteers are sitting. I think a much awaited time. It's now become a ritual, a tradition, and these young ones really excited. एक हलचल, उत्सुकता से प्रतीक्षा और माननीय प्रधानमंत्री का ज्ञान पथ पर आगमन। यहाँ 2500 एनसीसी कैडेट और माय भारत वॉलंटियर्स, ये उनके लिए एक यादगार अवसर। And we can see the eyes of the young light up, children greeting in excitement. For them, this is more than just meeting a leader. It is a moment they will carry in their hearts for years to come. The Prime Minister's affection for the youth is no secret. He often calls them the builders of India's tomorrow, the shapers of a future that will take the nation to new heights. Every handshake, every smile, every word of encouragement is like a seed planted in young minds, a seed of confidence, responsibility, and belonging. Moments like these are not scripted, they're woven in the joy of the people and the openness of the leader. They reaffirm a nation's faith in its democratic spirit, that here the voice of the people matters, and that those who lead by standing among them. And as the cheers rise and the tricolor waves in countless hands, this interaction becomes more than just a gesture. It becomes a symbol that in India's journey forward, it is the people who are the true strength, and it is their belief that carries the nation towards greater glory. माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रत्यक्ष संवाद में विश्वास रखते हैं, और वो भी खास तौर पर युवा शक्ति से। और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि जो माई भारत वॉलंटियर्स हैं या एनसीसी कैडेट्स हैं, जो कि सेना के तीनों अंगों से आए हुए हैं, अगर कुछ प्रतिभागी बीच में बैठे हैं तो उनके पास स्वयं जा कर के बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण, और जिसका पूरी तरीके से इन कैडेट्स के द्वारा, इन वॉलंटियर्स के द्वारा पालन किया जा रहा है। खुशी, उल्लास, प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। उनकी आंखों में चमक है जो कल के सुनहरे भारत की तस्वीर पेश कर रही है, और राष्ट्र का प्रथम नेतृत्व उनके इतना करीब है, उसको पा करके वो आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं और सुनहरी यादें लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं। It's always interesting to see, because the Prime Minister always is energetic. The young people here energized by his presence. But wonderful to see how energized the Prime Minister becomes in their midst. The tone tenor of the smile changes straight from the heart, the connections too straight from the heart. A picture postcard view of connecting with the people. In fact, these young ones are the repositories of all that is good in us. So let's have faith in them, let's dream with them, and let's nourish them. Because our belief in them validates our belief in the future. एक एक से मिलना, सबसे मिलना तो संभव नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जितना ज़्यादा वो मिल सकें,
सबके नज़दीक जाकर किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं। यूं कहिए कि इन सब के लिए जीवन भर की यादें रच रहे हैं। ये सब बाद में बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इतने नज़दीक थे वो, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बात की। अविस्मरणीय पल और युवा मन पर हमेशा अंकित रह जाने वाले ये प्रेरणा के वो क्षण इस समय हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। Faces filled with anticipation, eyes shining with pride. These children have come from every corner of the country. Some have traveled miles, some have dreamt of this moment for years, all to be here, to see, to feel, to be part of history as it unfolds before their eyes. For them, this is more than a celebration. It is a reminder that freedom is not a gift handed down, it is a treasure earned through struggle. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज्ञान पथ से अब सामान्य दर्शक दीर्घा की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जहां पर आम जनता बड़ी उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और ऐसा लग रहा है कि आज का उनका दिन 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज इन सभी का दिन यकीनन एक ख़ास दिन में परिवर्तित हो चुका है, जब राष्ट्र का प्रथम नेतृत्व उनके इतना नज़दीक है, इतना पास है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है, उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। अविस्मरणीय, कभी ना भुलाने वाला ये मंजर है। और बहुत से लोग जो यहाँ पर आज स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने इन दर्शक दीर्घाओं में पहुँचे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स में एक एक पल को कैद करके जाना चाहते हैं, सुनहरी यादें हमेशा के लिए संजो करके रखना चाहते हैं। The power of a democratic system, the power of relationship building, the power of popularity. And with great power comes great responsibility. The responsibility of every elected leader and head of government to lead the country from strength to strength, to connect with the people stronger every time, and to ensure that the people of the country, the interests of the nation, are put forward in front every time. Our freedom today gives us wings, while our history anchors us to a land that has held us strong and given us stability. And today what we are seeing is a slice of that strength of this nation, its people. Our strength lies in us being one, and that is what has helped us get our freedom finally, when we all came together and public sentiment rode high. Actually, divided, we could be ruled, but together, we could be liberated. And that's the power of coming together. हिलते हुए हाथों का एक समुद्र है, और समुद्र में जैसे लगातार लहरें उठ रही हैं, ये लहरें मन में उठ रही हैं और मन से उठ रही हैं। आज हमने ये भी देखा, बहुत से लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी नज़दीक जाते हैं इन दीर्घाओं के। कई लोगों ने उनको चित्र भेंट किए हैं। और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं।
Saman Guard! General Slot! Selamat! Chat! Antar Sena Polis Saman Guard! Ajab! Chat! अंतर सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band positioned there will strike up a slow march during the inspection. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। Taking into account newer sensibilities and needs and continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony.
79वां स्वाधीनता दिवस समारोह। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञान पथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। आजादी के शानदार 78 साल पूरे हुए हैं और देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज हवा के झोंकों में अलग सी खुशबू है, फूलों की छटा और भी निखरी हुई, सुबह की रोशनी एक अलग चमक के साथ बिखरी हुई। हर बात में इन्हीं भावनाओं का समावेश है कि आज का दिन बड़ा विशेष है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोह में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार नया भारत के थीम के साथ हम मना रहे हैं अपना स्वाधीनता दिवस। Namaskar and celebratory Independence Day greetings to every Indian inhabiting this varied and breathtaking country we live in. And of course to every fellow Indian based in different time zones across the world. Vande Mataram from the land they can always call home. On this August morning, we invite you to celebrate our 79th Independence Day. As our hands, hearts and hopes come together, join us to salute our oneness, relive our history and recommit to our continuing progress, peace and prosperity. As the nation celebrates the dawning of another Independence Day, all eyes see the tricolour, all prayers rise in gratitude and all feet tap to the beat of patriotism. In fact, long after the spoken word has melted into time and space, उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या
घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लाल किले पर आज कई विशेष महानुभाव उपस्थित हैं। दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं, ड्रोन दीदी के प्रतिनिधि हैं, लखपति दीदी की प्रतिनिधि हैं, खेल जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र जीवन में कुछ न कुछ देने वाले यहां महानुभाव उपस्थित हैं। एक प्रकार से यहां मेरी आंखों के सामने मैं लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशाल भारत के साथ भी आज लाल किला जुड़ा हुआ है। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का विश्व भर में फैलाए हुए
भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के, प्यारे देशवासियों, इन सब के लिए एकता, ये मंत्र सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। और इसलिए एकता की डोर को कोई काट न सके, ये हमारा सामूहिक संकल्प होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मां भारती के प्रति कर्तव्य निभाना ये पूजा से कम नहीं है, तपस्या से कम नहीं है, आराधना से कम नहीं है। और उसी भाव से हम सब मातृभूमि के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पार करने के लिए अपने आप को खपा देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। जो भी सामर्थ्य है, कोई भी अवसर को छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, नए अवसरों को निर्माण करेंगे और निर्मित करने के बाद हम 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें याद रखना है, 140 करोड़ देशवासियों को याद रखना है, परिश्रम में जो तपा है, परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार फिर आप सबको आजादी के इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे
Prime Minister Narendra Modi concluding another very well received and successful Independence Day address from the ramparts of Red Fort. Nation building can have different lenses. The power of being one, the exclusion of none, and the empowerment of everyone. And as the Prime Minister outlined, the road India is on is one of powered growth, fast-paced development, and a pragmatic world positioning and worldview. And here, hundreds of balloons being released in the air. And as the light blue of the sky welcomes the colors of our national flag, freedom and independence take symbolic forms. Light, free from baggage, and moving up towards a higher, hopeful and harmonious future. As if carrying with them the vision and aspiration of more than 1.3 billion Indians. Prime Minister Narendra Modi is now on his way out of the venue. India has entered the 79th year of its independence, a landmark, but also a reminder of how we need to plan the next few years and ensure that economic and social independence acquire true meaning for every citizen. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के पश्चात लाल किले की प्राचीर से अब प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाधीनता समारोहों के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जुड़ता हुआ सफल और भव्य आजादी का ये पर्व इस बार अलग रंग और छटा के साथ समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्ज किया गया और नया भारत बनाने के संकल्प को धारण किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने वाहन में बैठकर अब ज्ञान पथ की ओर यहां से प्रस्थान कर रहे हैं और जैसा हम सभी ने देखा है कि जब भी वो अपनी वाहन में बैठते हैं तो सीट बेल्ट का हमेशा प्रयोग करते हैं। एक संदेश सभी के लिए। And earlier, as the shades of freedom took to the skies, they gave wings to an aspirations of a young and forward-looking people. Today, we recognize, revel, and rejoice in all that makes us truly Indian. All that bonds us as an entity, and all that helps us maintain our individuality. All that unifies our vision, and all that gives us different perspectives. All our celebrations together, and all our struggles that bring us together. The foregrounding being always the nation first. ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने नया भारत, जो कि 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य विषय है, थीम है, उसे आकार देते हुए भारत की युवा शक्ति, एनसीसी कैडेट्स और साथ में वॉलंटियर्स, युवा शक्ति जिसके हाथों में कल का भविष्य है, कल के भारत का भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की ओर चलने का संकल्प लिया। देशवासियों से वो संकल्प लेने का आग्रह किया। आत्मनिर्भरता, लोकल से वोकल होना, ये सभी बातें जिनकी ओर ध्यान देने का जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। ऐतिहासिक लाहौरी गेट से उनका काफिला मंथर गति से आगे बढ़ रहा है। इन्फॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि उससे भी आगे जाने की आवश्यकता है और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो नए संकल्प लेने हैं, उन संकल्पों की ओर दृढ़ता से चलना है, जीवट से चलना है। और जाहिर सी बात है
इसके लिए अभी तक जो कुछ किया गया है उससे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। A slight wind picking up the flutter in the flags and stirring the ambience with a satisfying sweep, and of course the clouds challenging the power of the sun. The Prime Minister's carcade now arriving at the road in front of the fort's moat, across which school children, NCC cadets and volunteers have been sitting with great discipline and respect. Everybody standing up to get a closer glimpse of the carcade. Satisfaction, contentment and celebration writ large over the venue, the people and everybody who participated in it. The Prime Minister's vehicle stopping in front of where these cadets and volunteers are sitting. I think a much awaited time. It's now become a ritual, a tradition, and these young ones really excited. एक हलचल, उत्सुकता से प्रतीक्षा और माननीय प्रधानमंत्री का ज्ञान पथ पर आगमन। यहाँ 2500 एनसीसी कैडेट और माय भारत वॉलंटियर्स, ये उनके लिए एक यादगार अवसर। And we can see the eyes of the young light up, children greeting in excitement. For them, this is more than just meeting a leader. It is a moment they will carry in their hearts for years to come. The Prime Minister's affection for the youth is no secret. He often calls them the builders of India's tomorrow, the shapers of a future that will take the nation to new heights. Every handshake, every smile, every word of encouragement is like a seed planted in young minds, a seed of confidence, responsibility, and belonging. Moments like these are not scripted, they're woven in the joy of the people and the openness of the leader. They reaffirm a nation's faith in its democratic spirit, that here the voice of the people matters, and that those who lead by standing among them. And as the cheers rise and the tricolour waves in countless hands, this interaction becomes more than just a gesture. It becomes a symbol that in India's journey forward, it is the people who are the true strength, and it is their belief that carries the nation towards greater glory. माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रत्यक्ष संवाद में विश्वास रखते हैं, और वो भी खास तौर पर युवा शक्ति से। और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये देखा जा सकता है कि जो माई भारत वॉलेंटियर्स हैं या एनसीसी कैडेट्स हैं, जो कि सेना के तीनों अंगों से आए हुए हैं, अगर कुछ प्रतिभागी बीच में बैठे हैं तो उनके पास स्वयं जा कर के बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण, और जिसका पूरी तरीके से इन कैडेट्स के द्वारा, इन वॉलंटियर्स के द्वारा पालन किया जा रहा है। खुशी, उल्लास, प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। उनकी आंखों में चमक है जो कल के सुनहरे भारत की तस्वीर पेश कर रही है, और राष्ट्र का प्रथम नेतृत्व उनके इतना करीब है, उसको पा करके वो आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं और सुनहरी यादें लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं। It's always interesting to see, of course the Prime Minister always is energetic. The young people here energized by his presence.
But wonderful to see how energized the Prime Minister becomes in their midst. The tone tenor of the smile changes straight from the heart, the connections too, straight from the heart. A picture postcard view of connecting with the people. In fact, these young ones are the repositories of all that is good in us. So let's have faith in them, let's dream with them, and let's nourish them. Because our belief in them validates our belief in the future. एक एक से मिलना, सबसे मिलना तो संभव नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जितना ज़्यादा वो मिल सकें, सबके नज़दीक जाकर किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं। यूं कहिए कि इन सब के लिए जीवन भर की यादें रच रहे हैं। ये सब बाद में बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इतने नज़दीक थे वो, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बात की। अविस्मरणीय पल और युवा मन पर हमेशा अंकित रह जाने वाले ये प्रेरणा के वो क्षण इस समय हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। Faces filled with anticipation, eyes shining with pride. These children have come from every corner of the country. Some have traveled miles, some have dreamt of this moment for years, all to be here, to see, to feel, to be part of history as it unfolds before their eyes. For them, this is more than a celebration. It is a reminder that freedom is not a gift handed down, it is a treasure earned through struggle. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज्ञान पथ से अब सामान्य दर्शक दीर्घा की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जहां पर आम जनता बड़ी उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। और ऐसा लग रहा है कि आज का उनका दिन 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज इन सभी का दिन यकीनन एक ख़ास दिन में परिवर्तित हो चुका है, जब राष्ट्र का प्रथम नेतृत्व उनके इतना नज़दीक है, इतना पास है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है, उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। अविस्मरणीय, कभी ना भुलाने वाला ये मंजर है। और बहुत से लोग जो यहाँ पर आज स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने इन दर्शक दीर्घाओं में पहुँचे हैं, अपने मोबाइल फोन्स में एक एक पल को कैद करके जाना चाहते हैं, सुनहरी यादें हमेशा के लिए संजो करके रखना चाहते हैं। The power of a democratic system, the power of relationship building, the power of popularity. And with great power comes great responsibility. The responsibility of every elected leader and head of government to lead the country from strength to strength, to connect with the people stronger every time, and to ensure that the people of the country, the interests of the nation, are put forward in front every time. Our freedom today gives us wings, while our history anchors us to a land that has held us strong and given us stability. And today what we are seeing is a slice of that strength of this nation, its people. Our strength lies in us being one, and that is what has helped us get our freedom finally, when we all came together and public sentiment rode high. Actually, divided, we could be ruled, but together we could be liberated.
And that's the power of coming together. हिलते हुए हाथों का एक समुद्र है और समुद्र में जैसे लगातार लहरें उठ रही हैं, ये लहरें मन में उठ रही हैं और मन से उठ रही हैं। आज हमने ये भी देखा, बहुत से लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी नजदीक जाते हैं इन दीर्घाओं के। कई लोगों ने उनको चित्र भेंट किए हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह एक गौरवपूर्ण अवसर है हर देशवासी के लिए और देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए स्वाधीनता दिवस समारोह की शाम को भी पहली बार पूरे भारत में 140 चुनिंदा जगहों पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बैंड प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज्ञान पथ से अब प्रस्थान कर रहे हैं अपने वाहन में। उनका काफिला कुछ देर के पश्चात मंथर गति से रवाना होगा लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने से, जहां पर अब से कुछ देर पहले उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, प्राथमिकताओं का रेखांकन किया। So as the Prime Minister moves away from Red Fort, we too bid you farewell from the venue here. And it is with the firm belief and conviction that India and every Indian has and will fare well. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले से। कहने को तो बस एक सफर है, मगर शर्त है चलते रहना। हम रास्ता तो चुन सकते हैं, लेकिन उसमें आने वाली मुश्किलों को टाल नहीं सकते। ना थमना है, ना रुकना है, बस चलना।